हमारी टीम की तरफ से स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ बैठे मान्यवर से विनती करता हूँ कि वो प्रतिमा पूजन के लिए आगे आए। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा सेकेंड ईयर कैडेट अथर्व कुलकर्णी को। Hello friends and honorable teachers. My name is Atharva Yogesh Kulkarni. Today we all have attended here to celebrate birth anniversary of Mahatma Gandhi. On this day, educational institutions organize various cultural and academic programs to develop the value of leadership, simplicity and non-violence. Mahatma Gandhi was a great freedom fighter, writer, philosopher, secular, socialist and above an ideal politician. Yes, he was a multi-talented and superhero during the Indian freedom struggle. We will always remember Bapu as a symbol of peace and truth. He was the man of simple living and high thinking. Mahatma Gandhi fought against British domination and finally sacrificed his valuable life for us. Really, his life is the good message to us. I conclude my words by a question of Mahatma Gandhi. You must be the change you want to see the world. Thank you. धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूँगा सेकेंड ईयर कैडेट आर्यन काशिक। Good morning everyone. Jai Hind. I am Cadet Aryan Kashif and today we have gathered here to celebrate birth anniversary of Mahatma Gandhi, which is also known as Gandhi Jayanti. On 2nd October every year India observes a national holiday as Gandhi Jayanti to celebrate independence and honor the principles through which our freedom fighter and leader Mahatma Gandhi led us to this day. This year we are celebrating 153rd birth anniversary of Mohandas Karamchand Gandhi, the father of our nation, and who is also called Bapu, especially by children. He worked in South Africa against racial injustice. He fought for our independence by following the principles of peace and non-violence. He led many successful campaigns like Dandi March and also calling out the British to quit India all through non-violence. Gandhiji preferred simple life with minimal things and was a keen observer of cleanliness. Our government runs Swachh Bharat Abhiyan by his name to encourage people to keep their surroundings clean. He believed in simple life and big deeds. His life motto, that is my life, is my message, also conveyed the same idea. Once he said, an eye for an eye will make the whole world blind, to show the importance of non-violence. His life, messages and wisdom not only influenced India but also inspired the whole world to believe in the religion of humanity. On this day of Gandhi Jayanti 2022, let us pledge ourselves to follow the path of the legacy he left behind and led our lives in peace and harmony. Thank you. Jai Hind. अभी के स्पीच के लिए मैं दोनों कैडेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ और अब मैं मान्यवर से विनती करता हूँ कि हमारे कार्यक्रम के बारे में कुछ शब्द बोलें। थर्ड महाराष्ट्र नेवल यूनिट के ऑफिसर, हमारे स्कूल के माननीय सालवी सर जी, एनसीसी के सभी छात्रा और पाठशाला में हमारे जो आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जा रही है, उस अवसर पर सभी उपस्थित मान्यवर। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का पोरबंदर में जन्म हुआ। मोहनदास करमचंद गांधी ये उनका पूरा नाम था। अभी जो छात्र ने कहा कि वो पहले अफ्रीका में बैरिस्टर का काम करते थे, वहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ जो उनकी मुठभेड़ हुई, उसमें उन्होंने तय किया कि गोरे और काले का जो भेद है वो हमें मिटाना चाहिए, चाहे हमें कितने भी सुशिक्षित हो, कितने भी क्वालिफाइड हो, मगर ये इसको इस दरी को मिटाना चाहिए। और वो भारत आए,
भारत आने के बाद उन्होंने पूरे भारत में एक सैर किया और घूम कर आए, पूरा भारत देखा, वहाँ की गरीबी देखी, वहाँ की अमीरी देखी, वहाँ का निसर्ग देखा और फिर उन्होंने तय किया कि हमें अंग्रेज़ों के से भारत को छुड़ाना चाहिए और उसके लिए उन्होंने एक जंग छेड़ी। जंग मतलब दो तरह के जंग होते हैं जो युद्ध में सीमा पर या फिर सैनिकों के साथ लड़ी जाती है। गांधी जी की जंग अलग थी, वो अहिंसा के साथ जंग लड़ रहे थे। जैसे कि हिंसा के साथ जंग लड़ी गई जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वगैरह ने लड़ी, जैसे कि हमारे पुणे में चाफेकर बंधु ने लड़ी। मगर गांधी जी ने जो जंग लड़ी, एक कहते हैं गांधी जी के बारे में कि दे दी हमें आज़ादी बिना शस्त्र बिना घाव, साबरमती के संत तूने कर दिया था। बिना शस्त्र बिना घाव बिना कुछ हिंसा किए अहिंसा के साथ उन्होंने जंग लड़ी और बहुत सारे लोग उनसे जुड़ गए, पूरा भारत उनसे जुड़ गया। और फिर 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। गांधी जी के बचपन के बारे में की एक बात मैं आपको बता रहा हूँ। जब गांधी जी छोटे थे और स्कूल में जाते थे, एक दिन ऐसे ही जैसे कि आप यहाँ पर आए हैं आज कार्यक्रम के लिए, वैसे ही उनके स्कूल में व्यायाम का एक तासिका थी, काम था। और गांधी जी जब स्कूल पहुँचे तो व्यायाम का पीरियड तासिका वो समाप्त हो चुकी। उनके जो अध्यापक थे उन्होंने गांधी जी को शिक्षा की देरी से आने के कारण। उस दिन आकाश में बादल छाए हुए थे, उस ज़माने में उनके पास किसी के पास भी घड़ी नहीं थी और गांधी जी को समय के बारे में पता नहीं चला। जब वो पहुँचे तो देर हो चुकी थी क्योंकि समय के बारे में बादल छाने के कारण उन्हें पता नहीं चला। फिर भी गांधी जी ने सच बताया उनके अध्यापक को, फिर भी उनको शिक्षा मिली, सज़ा मिली देरी से आने के कारण। उस समय से गांधी जी ने तय किया कि सच बोलने वालों को समय के बारे में पाबंद रहना चाहिए, समय पालन करना चाहिए। तब से लेकर आखिरी सांस तक उन्होंने ना कभी झूठ बोला, ना कभी हिंसा की और वो समय पालन के बारे में बहुत ही जागरूक रहते थे। ये जो कुछ बातें हैं गांधी जी के बारे में, यह हमें भी उसका इस्तेमाल करना चाहिए, हमें भी अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए। आपने यहाँ पर गांधी जयंती का जो समारोह किया उसके लिए प्रशाला की ओर से हम धन्यवाद करते हैं या फिर गांधी जी को नमन करते हैं। धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए शुक्रिया और मैं ये जाहिर करता हूँ कि ये कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। धन्यवाद। के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बंदूकों से काम लिया, ना बंदूकों से काम लिया। इस देश की आजादी के लिए, इस देश की आजादी के लिए बापू ने कभी आराम ना किया, बापू ने कभी आराम ना किया। जय हिंद, जय हिंद।